Good morning, students. Our next topic in this chapter is calculation of missing value. Missing value means what, children? Suppose if the value of one of the observation is not given to you, but mean is already given. Up to now हम लोग ने ये पढ़ा था कि assumed mean हमें calculate करना था. But now in next question we will see that mean will be given to you and observation में से एक observation missing होगा. So it is possible to calculate the missing value by using the formula. See, the formula is what? X bar is equal to x1 plus x2 plus x3 x4 whatever it is. That's why it is written xn minus 1 it is written. So this you have to understand. Upon n. N means number of items. So here what will happen, children? Just see where x1 x2 will be giving what? The values of x. Okay. So now take one example. Just this is a very simple example. I am only reading out for you. Mean of a series of 5 items is 25. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मीन दिया हुआ है और 5 आइटम है और उसका मीन कितना है 25 एंड वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स, जो बाकी के 4 आइटम्स है उनकी वैल्यूज दी हुई है 10, 25, 35 एंड 40. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 5th आइटम. अब यहाँ पे 5th आइटम की वैल्यू नहीं दी हुई है और मीन दिया हुआ है. So what you are required to calculate? You are required to calculate the missing value. Understood the meaning now? So how you will do? See, x bar formula है, यही formula apply करना है. Mean is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. Now why you will take till x5, children? Because here on the question already it is given that there are 5 items और 4 items की value हमें दी हुई है. Upon n will be what? 5. So how you will solve this? Just have a look. Given x1, now you will write down over here x1 is equal to 10, x2 is equal to 25, x3 is equal to 35. सारे x के numbers को value दे दो. Now write down the formula. x bar मतलब mean is equal to, mean कितना है? mean already हमें question में दिया हुआ है which is 25. 25 is equal to plus all the items upon 5. So by solving this equation you will get the value of missing item, that is 5th item. That answer will be what? 15. अब ये तो सबको सॉल्व करना अपने से आता ही है. 25 इज इक्वल टू, इसको प्लस करो और 5 से डिवाइड कर लो. सो 125 इज इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस x5. देयरफॉर x5 विल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 125 यहाँ पे है और ये जो प्लस साइन है तो इट विल बिकम माइनस 110. आंसर विल बी व्हाट? 15. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था मिसिंग वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है. बट अगर नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं वो भी देखना है. सो चिल्ड्रन, let us look at this. When one of the items or frequency is missing, then it is possible to find out the missing item or missing frequency with the help of direct method of calculating the arithmetic mean. Means discrete series और continuous series में हमें कौन सा मेथड यूज करना है? Direct method. So steps to determine the missing value will be what? If the item is missing, then assume the missing item as x. In case of missing frequency, assume the missing frequency as f. Missing frequency को assume क्या करना है? f. So apply the direct method of measuring the arithmetic mean. अब direct method में in case of discrete series, this is the formula. x bar is equal to sigma fx upon sigma f. Or in case of continuous series, the formula is x bar is equal to sigma fm upon sigma f. So if the formula is given to you, it is very easy. You can do it. So by solving the equation, we will get the value of the missing item or the missing frequency. So from example number 16 to 20, it will illustrate the calculation of missing values or missing frequency. So now students, just look at example number 16. What it is given? Find the missing item if mean of the following series is 50. अगर mean दिया हुआ है 50 और missing item calculate करना है तो very easy it is. Marks is given and number of students is given. So calculation of mean, how you will calculate? Just look at over here. Marks, number of students will become what? F and then fx. So just multiply this and you will get what? Sigma fx. यहाँ पे जो missing है, ओके देखो जो मिसिंग है उसको हम x डिनोट करेंगे और fx निकालते समय 4 into x करोगे तो ये 4x लिखना इंपॉर्टेंट है. दिस यू हैव टू पे अटेंशन चिल्ड्रन. ये जो है ये 4x लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा fx विल बी 820 plus 4x. This is very important. You have to write down the summation in this way only. And here sigma f will be how much? So
x bar is equal to sigma fx upon sigma f by applying this formula. x bar is already given, mean हमें दिया हुआ है. Once again I am showing you in the question. See, in the question it is already given. See, find the missing value if the mean of the following series is how much? 50. Okay, so in the question mean is already given. So 50 plus and what we got sigma fx हमको यहाँ पे मिल गया था. See, here we got how much? 820 plus x. This whole thing we are going to write down. और sigma f कितना था? 20. बस you have to only apply the formula and then solve this. So 50 is equal to 820 plus 4x upon 20. By solving this, you get the answer 45 marks. Then example number 17, same thing. Find the missing frequency if mean is 29. Mean is given to you. Okay, now you are required to calculate what? Missing frequency. अब यहाँ पे क्या है? Frequency missing है. और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? Just see, missing item. दोनों में डिफरेंस समझो. एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या मिसिंग था? मिसिंग आइटम वॉज मिसिंग. सी यहाँ पे x हमें लेना था क्योंकि वन आइटम मिसिंग था. सी इन द एग्जाम क्वेश्चन विल कम लाइक दिस चिल्ड्रन. क्वेश्चन मार्क जहां पे दिया हुआ है वहां पे आपको x लिख देना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा तो वहां पे भी हमें x लिखना है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू शुड अंडरस्टैंड एंड दे आर वेरी वेरी इजी ऑल्सो चिल्ड्रन. सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज. See, items is given. Find out the missing frequency if mean is 29. Items are given. Frequency 5, 7, question mark. मतलब जो question mark है वहां पे हम क्या लेंगे? F लेंगे. See, here it is given F. Now simply multiply this fx करो. 5 into 5, 25. 15 into 7, 105. Like this, you will do this. And sigma fx हमें कितना मिलेगा? 1150 plus 25f. इस f को लिखना भूलना नहीं है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. 25 इंटू एफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25f. बस अब क्या करना है? खाली फॉर्मूला अप्लाई करो. x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सो x बार इज ऑलरेडी गिवन. मीन हमें दिया हुआ है 29 प्लस सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1150 प्लस 25f अपॉन 38 प्लस f अपॉन सिग्मा f भी देखो कितना है? 38 प्लस f लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे f है. सो अंडरस्टूड. यू हैव टू राइट डाउन 38 प्लस f. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए क्योंकि ये सब ऑलरेडी इस टाइप के इक्वेशंस आपने मैथमेटिक्स में अर्लियर क्लासेस में सब सीखा हुआ है. यहाँ पे सब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो पहले ही बता दे रही हूँ. प्लीज यू हैव टू डू दिस ऑफ योर ओन. सो 1102 प्लस 29f इज इक्वल टू 1150 प्लस 25f. ये आपको अपने से सॉल्व करना है. 29f minus this, so answer you will get what? Frequency will be what? 12. Those who are not able to do this type of equations, please improve your mathematics first. क्योंकि ये equations अगर मैं क्लास में भी पढ़ाती तो I would have not solved this calculations. I would have asked you कि अपने से करो. ठीक है? Take a look at the next question. Example number 18. Locate the missing frequency if arithmetic mean is given 44.8. यहाँ पे mean हमें डेसिमल में दिया हुआ है और क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, इसको फाइंड आउट करना है. तो सी हाउ यू विल डू दिस. लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी एफ. सारे आइटम्स है यहाँ पे एफ है. जहां पर देखो जो मिसिंग है वहां पे एफ लिख देना है और सिग्मा एफ एक्स कर देना. बस मल्टीप्लाई करो एंड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस. अब सारे क्वेश्चंस मैं नहीं बता रही हूँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास. अब ये कंटिन्यूस सीरीज का आ गया. देखो see in the following frequency distribution the frequency of the class interval 50 to 60 is not known. अब ये continuous series है क्योंकि यहाँ पे class interval दिया हुआ है. तो what you will do, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ नहीं है. class interval 10 to 20 is given, 20 to 30, 30 to 40 like this it is given. अब इसमें से एक का frequency missing है तो जो क्लास इंटरवल 50 to 60 है उसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और वो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. Class interval 50 to 60 is not known, so you are required to find out if the arithmetic mean of the distribution is 52. Arithmetic mean is already given to you 52 and C 50 to 60 ये वाला का frequency missing है. तो क्या करना है? बस फॉर्मूला अप्लाई करो. सिग्मा FM था ना तो कैसे करोगे? क्लास इंटरवल पहले ऐसे लिखना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया लिख दो. बस जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पे F लिख देना है.
फिर क्या करना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें दिया है सिग्मा FM, इसीलिए मैं कहती हूँ कोई भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले फॉर्मूला लर्न करो, और फॉर्मूला लिखोगे तो जैसे ही तुम फॉर्मूला लिखोगे तुम्हें पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा M का, M मतलब मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये L1 होता है, ये L2 होता है, तो L1 प्लस L2 अपॉन 2, 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 विल बी हाउ मच 15, तो इस तरह से मुझे 15 आ गया। तो इस तरह से सबके मिड वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज F एंड दिस इज M, F M नेक्स्ट कॉलम है, तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 5 75, 25 3 75, 35 इंटू 4 140, लाइक दिस यू विल डू मल्टीप्लीकेशन। और ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है, इसका टोटल लेना है, सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा F इज इक्वल टू 38 प्लस F। अब सिग्मा FM, क्योंकि फॉर्मूला में हमें ये चीज चाहिए, सिग्मा FM इज इक्वल टू 1970 प्लस 55F। आया समझ में? यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में है ये 55F है, एज इट इज उसको कॉपी कर लेना है। देखो ये जो 55F है इसको प्लस 55F लिखना है, इसको ऐड नहीं करना है, डोंट फॉरगेट दिस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। सो मीन इज इक्वल टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, 52 इज इक्वल टू 1970 प्लस 55F अपॉन 38 प्लस F, सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी विल बी 2। इस तरह से सॉल्व करो और आंसर लेके आओ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इफ एवरेज मार्क्स आर 17। यहाँ पे भी क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, कंटिन्यूस सीरीज का दूसरा एग्जाम्पल है। देखो 15 to 20 जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी दी हुई है, इसको अपने से करो सॉल्व दिस, वेरी वेरी इजी इट इज। FM चाहिए हमें, M निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 0 to 5 है तो मिडिल M क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, 2.5 12.5 लाइक दिस, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। सो यहाँ तक आपको सबको अपनी नोटबुक्स में करना है। नाउ वी विल स्टडी अरिथमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या क्या है ध्यान से देखो। सी मीन इन स्पेशल केसेस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है जहां पे लेस देन और मोर देन हम लोग करते हैं। मिड वैल्यू जहां पे दिया हुआ होगा, मिड वैल्यूज आर गिवन, सो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स विल बी गिवन टू यू। Inclusive class intervals, classes of type 10 to 19, 20 to 29 will be given to you. Then open end series, lower limit of the first class and upper limit of the last class will not be given. Unequal class interval मतलब when class intervals are not equal. अब जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना तो आपको करना क्या है, सपोज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेस देन और मोर देन इज गिवन टू यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो इस तरह का क्वेश्चन होगा, लेस देन 20, लेस देन 30, क्वेश्चन इस टाइप से होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 21, 22 और 23 में करवा रही हूँ। ओके, मिड वैल्यू जब नहीं दी हुई है, सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट मिड वैल्यूज इनटू क्लास इंटरवल्स, कैलकुलेट मीन इन यूजुअल मैनर। अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है तो क्या करना है, नो नीड टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, कैलकुलेट मीन इन यूजुअल मैनर। और ओपन एंड सीरीज में क्या करना है, सी चिल्ड्रन, मैं जो रीड कर रही हूँ एवरीथिंग इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जब तक आप लोग अपने आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो in open end series what you have to do, missing limits need to be assumed depending on the pattern of class intervals। और जब unequal है तो no need to make class intervals equal, calculate mean in usual manner। for that you will refer example number 28। सबके लिए दिया हुआ है कौन कौन से एग्जाम्पल इलस्ट्रेट किया हुआ है। सो फर्स्ट लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल नंबर 21। क्यूमुलेटिव सीरीज है ये, लेस देन और मोर देन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, see when the data is given in the form of less than or more than for all the items in the series it is called cumulative frequency। cumulative frequency किसको बोलते हैं, जब डेटा लेस देन और मोर देन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस तरीके से, लेस देन लिखा हुआ है कि नहीं, ओके। देन द फॉलोइंग, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नाउ, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रॉफिट। so the following table gives the profit earned by various companies, calculate the average profit earned। So profit is given as how much, less than 20, number of companies 5, see 5 companies, less than 30 22, like this it is given, less than 40 48, less than 50 60। okay, the following table gives the profit earned, you are required to calculate average profit earned। so since we are given the cumulative frequencies we will first find out the सिंपल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट कॉलम हमारा कौन सा होगा? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा? दैट यू विल टेक एज क्लास इंटरवल। जैसे मैंने बोला था ना, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो देखो क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। सो लेस देन 20 है तो 10 टू फर्स्ट कॉलम विल बी व्हाट? 10 to 20। लेस देन 30 है तो नेक्स्ट कॉलम विल बी व्हाट? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। नंबर ऑफ कंपनीज 5। अब देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 5 के बाद क्या है? 22। तो 22 माइनस 5 हमें करना है तो हमें मिलेगा 17। ये चीज बहुत बच्चों को नहीं आएगी समझ में, फिर मेरे से पूछोगे क्यों हमें यहाँ पे माइनस करना है? क्योंकि चिल्ड्रन जस्ट सी, लेस देन 20 में 5 कंपनीज है और लेस देन 30 में मतलब ये भी इंक्लूड हो चुका है। सो व्हाट यू विल राइट डाउन? इन द क्लास ऑफ 20 to 30 यू विल टेक ओनली 17। सो यू हैव टू कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस 48 minus 22 so that you will get this 26. So keep on subtracting this and you will get the answer in this way. Mid value निकालना है, L1 plus L2, 10 plus 20 upon 2, 15. In this way you will calculate mid value. Then you have to calculate now D is equal derivative. तो M से हमें assumed mean निकालना है, M minus A. Assumed mean any number we will take 45. In this way, ये तो मैंने पहले भी करवाया है कल वाले वीडियो में, तो यू विल नो हाउ टू डू। देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? D डैश M माइनस A अपॉन C। C इज व्हाट? कॉमन फैक्टर। तो इसका कॉमन फैक्टर हमें किसका लेना है? मिड वैल्यू का। सो वी विल टेक एज व्हाट? 10। सो कॉमन फैक्टर इफ यू टेक 10, जस्ट डू द कैलकुलेशन। M इज व्हाट? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू माइनस A क्या है? एज्यूम्ड मीन अपॉन कॉमन फैक्टर। देन F D डैश, दिस इज D डैश एंड दिस इज F। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द टोटल लाइक दिस, सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू -18 और सिग्मा एफ कितना है? 100। नाउ सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है? हमारा एज्यूम्ड मीन विच विल बी इक्वल टू A प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ प्लस C। ये तो फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन में मैंने यही फॉर्मूला करवाया है। एज्यूम्ड मीन इज हाउ मच? 45 प्लस -18 upon 100 into 10. So the answer will come rupees 43.2 crores. Followed? Now in the next video we will see example number 22. Less than का हो गया, अब more than का करवाऊंगी in the next video.